Hello everyone. In this video we will discuss about the menstrual cycle of the chapter human reproduction. तो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है ह्यूमन प्राइमेट्स में, जैसे मंकीज हैं, एप्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. The first menstruation begins at puberty and is called menarche. जो पहला menstruation है वो प्यूबर्टी पे ही बिगिन हो जाता है. प्यूबर्टी मतलब जब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं तो पहला मेंस्ट्रुएशन जो बिगिन होता है प्यूबर्टी पे, दैट इज कॉल्ड menarche. ह्यूमन फीमेल्स में menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days की साइकिल होती है ये menstrual cycle. और जो इसमें इवेंट्स होते हैं इस साइकिल में, स्टार्टिंग फ्रॉम वन menstruation till the next, that is called menstrual cycle. So this is the menstrual cycle. अब during each of the menstrual cycle, one ovum is released. That process is called ovulation. तो ovulation एक ऐसा process होता है, ये हर menstrual cycle में 14th day में होता है, 14th day में होता है बीच में. तो ovulation में क्या होता है, एक ovum release होता है during the middle of each menstrual cycle. तो what is ovulation? एक ऐसा process है, the process in which ovum is released during the middle of each menstrual cycle. menstrual cycle के middle में ये ovum release होता है. menstrual cycle is regulated by following hormone. ये सारे hormones हैं जो कि regulate करते हैं menstrual cycle को, that is FSH, LH, progesterone and estrogen. FSH is follicular stimulating hormone and LH is luteinizing hormone. Progesterone and estrogen, these are the ovarian hormone, and LSH and FSH, these are the pituitary hormone. ये हमारे pituitary hormone है FSH and LH, and progesterone and estrogen जो होते हैं वो ये ovarian hormone है, that is found only in females. Menstrual cycle takes place due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels along with unfertilized ovum. जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, आई हैव टोल्ड यू इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने ये बताया था कि यूट्रस की 3 लाइनिंग्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम. तो जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उसका ब्रेकडाउन अलोंग विद द ब्लड वेजल्स के साथ में और अलोंग विद अनफर्टिलाइज्ड ओवम, जो ओवम रिलीज हुआ है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, इन तीनों का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस होती है. तो दिस इज द प्रोसेस हाउ इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस and its blood vessels along with unfertilized ovum के साथ में जब ब्रेकडाउन होगा तब menstrual cycle बिगिन होगी. तो दिस इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो बहुत 4 फेजेस अकर होते हैं. मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये हैं, these are the major events of the menstrual cycle. The first phase is the menstrual phase, the second phase is the follicular phase, third one is the ovulatory phase and the fourth one is the luteal phase. As you can see in the diagram, this is the diagram of the presentation of various events during a menstrual cycle. This is the first phase, this is the menstrual phase. The second one is the follicular phase, इसको हम proliferative phase भी कहते हैं. The third one is the ovulatory phase and the fourth one is the luteal phase. luteal phase के बाद आती है हमारी दूसरी साइकिल बिगिन हो जाती है. follicular phase को हम proliferative phase भी कहते हैं और luteal phase को हम secretory phase भी कहते हैं. So this is the diagram of the presentation of various events during a menstrual cycle. तो ये जो first phase है that is called menstrual phase. first से 5 तक जो days होंगे, 3 to 5 days, that is menstrual phase चलता है. यहाँ पे क्या होता है, जो endometrial lining होती है वो break down हो जाती है along with the blood vessels, along with the unfertilized ovum. जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, द ब्लड इज कम्स आउट फ्रॉम द वेजाइना. और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ओवेरियन हार्मोन का लेवल है वो इतना नहीं है यहाँ पर इन द मेंस्ट्रुअल फेज. तो साइकिल कब स्टार्ट होगी, विद द मेंस्ट्रुअल फेज, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर होगा एंड इट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 days. किस तरीके से फ्लो होगा ये, ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट ब्लड वेसल्स व्हिच कम्स आउट थ्रू द वेजाइना. मेंस्ट्रुएशन ओनली अगर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तभी अगर होगा जब रिलीज्ड ओवम जो है, जो ओवम ओव्यूलेशन के टाइम में जो रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं होगा, तभी ये मेंस्ट्रुएशन अगर होगी.
लैक ऑफ menstruation may be indicative of pregnancy. अगर menstruation नहीं हो रही है तो that is the indicative of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying causes, जैसे कि stress है, poor health है, इस वजह से भी menstruation नहीं होती है. तो this is the menstrual phase which occur in every human female. This is the first phase of the menstrual cycle. After the menstrual phase, it leads to another event that is called follicular phase or proliferative phase. इस फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, द मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड करती है फॉलिकुलर फेज से. इस फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं ओवरी में वो ग्रो करते हैं और एक फुली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज के इवेंट्स हैं. ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो फॉलिकल्स हैं ये बन रहे हैं, ये फॉलिकल्स हैं, ये फॉलिकल ग्रो हो रहे हैं, आगे प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है एंड देन प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल से क्या हो रहा है, एक टर्शियरी फॉलिकल बन रहा है, एक मेच्योर फॉलिकल बन रहा है. नाउ टर्शियरी फॉलिकल के बाद क्या बनेगा, एक ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, मतलब एक मेच्योर फॉलिकल बनेगा. इस मेच्योर फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल में क्या होगा, अंदर कैविटी होगी, दैट इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल. ये ग्राफियन फॉलिकल है. नाउ क्या होगा अब आगे, ये इवेंट्स कब हो रहे हैं, these events takes place in the follicular phase, in the proliferative phase. और इस फेज में क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल है वो बहुत ज्यादा पीक लेवल पर, ये जो फॉलिकल्स बन रहे हैं ये किस वजह से बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन. मैं भी बताया ये पिट्यूटरी हार्मोन हमारे कौन से हैं, एफएसएच एंड एलएचएस. तो एफएसएच एंड एलएच और ओवेरियन हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, these begin the follicular phase. These are responsible to induce the changes in the ovary. तो जो सिक्रीशन होता है गोनेडोट्रोपिन का, LH और FSH, ये इंक्रीज कर देता है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड इट स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल. जैसे ही फॉलिकल ग्रो होंगे तो जो सिक्रीशन होगा ईस्ट्रोजन का वो बढ़ जाएगा. देन द थर्ड फेज इज द ओव्यूलेटरी फेज. ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, जो ओव्यूलेशन होगा वो अकर होगा. ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, ओव्यूलेशन का मतलब है ओवम रिलीज होगा फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द ओव्यूलेटरी फेज. ये 14th डे में अकर होगी, 14th डे में अकर होगी ओव्यूलेटरी फेज. क्या होगा ओव्यूलेटरी फेज में, जो हमारा पिट्यूटरी हार्मोन है LH एंड FSH एंड LH, इनका जो पीक लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हाई लेवल पे चला जाएगा, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. और जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो भी हाई लेवल पे चला जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ द ओव्यूलेशन. तो जो ईस्ट्रोजन है उसका लेवल बहुत बढ़ जाएगा और LH का जो सर्ज है वो भी बहुत पीक लेवल पे चला जाएगा. जब ये पीक लेवल पे चला जाएगा तो पीक लेवल पे जाने की वजह से एक ओवम यहाँ से रिलीज होगा. That process is called ovulation, ovulatory phase. क्या हो रहा है ovulatory phase में, जो LH और FSH है that attain a peak level in the middle of the cycle. cycle के middle में क्या होगा, पीक लेवल अटेन कर लेंगे और जो रैपिड सिक्रीशन होगा LH का, दैट लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द साइकिल, दैट इज कॉल्ड LH सर्ज, इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयरबाय द रिलीज ऑफ द ओवम. क्या हो रहा है, जो मेच्योर फॉलिकल है, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो रहा है और एक ओवम रिलीज कर रहा है इन द ओव्यूलेटरी फेज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. और ये ओव्यूलेशन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ द LH. जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये ओव्यूलेटरी फेज हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है. देन उसके बाद ये जो ओव्यूलेटरी फेज है दैट इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज को हम सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं. सिक्रेटरी फेज भी हम इसको कहते हैं, ल्यूटियल फेज को. नाउ ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय ल्यूटियल फेज. इस फेज में क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है, यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द मेच्योर फॉलिकल, मतलब ग्राफियन फॉलिकल. क्या बन रहा है, ओवम बन रहा है. तो कुछ पार्ट जो है ग्राफियन फॉलिकल का, ये आगे जाकर क्या बनाएगा, एक कॉर्पस ल्यूटियम बना लेगा. इट फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटियम, इट फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटियम. कुछ पार्ट ग्राफियन फॉलिकल का क्या बना लेगा, कॉर्पस ल्यूटियम. ये कॉर्पस ल्यूटियम जो बना है ये किस लिए बना है, फॉर द रीजनरेशन ऑफ द यूट्रस की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, जो कि ब्रेक डाउन हो गई थी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज. ये
इस फेज में अपने आप को आगे जाकर रीजेनरेट करेगा जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट, तो जो रिमेनिंग पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का, दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो बन रहा है, ये जो बनेगा जब कॉर्पस ल्यूटियम, तो जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, और जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो जनरली एक ऐसा ओवेरियन हार्मोन है जो कि एसेंशियल होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के लेवल को जो है को मेंटेन करता है ये। तो ऐसा सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। जो भी फर्टिलाइज्ड ओवम हुआ है वो इम्प्लांटेशन के लिए नेसेसरी होता है एंड अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी। दिस इज द ल्यूटियल फेज, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को जो है बढ़ा रहा है। ये क्यों बढ़ा रहा है? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। दिस इज द ल्यूटियल फेज। नाउ प्रेगनेंसी के टाइम पे जितने भी इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जो फॉलिकुलर फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज है और ओव्यूलेटरी फेज है, ल्यूटियल फेज है, ये सारे इवेंट्स स्टॉप हो जाते हैं और कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स। जब डीजेनरेट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, तो दिस कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल। देखिए ये कॉर्पस ल्यूटियम रीजनरेट हुआ फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या होगा आगे इसी फेज में, ल्यूटियल फेज में, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये क्या होगा? डिसइंटीग्रेट होता रहेगा। ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा जब एब्सेंस होगा फर्टिलाइजेशन का, तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जब डिसइंटीग्रेट होगा तो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस की, वो रीजनरेट हो जाएगी और आगे न्यू साइकिल बिगिन हो जाएगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, अगर इस ओवम और स्पर्म आपस में मीट कर गए हैं और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो गया है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम आगे क्या होगा? रीजनरेट होगा और ये न्यू साइकिल बिगिन नहीं होगी। इट इज द इंडिकेटिव ऑफ द प्रेगनेंसी। यहाँ पे प्रेगनेंसी अगर हो जाएगी, लेकिन क्या होगा यहाँ पर, जब ये जो ये डायग्राम है ये किसका है? ये डायग्राम आपको इवेंट्स ये दिखाए हैं कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रीजनरेट हो रहा है, ये रीजन डिसइंटीग्रेट हो रहा है। मतलब डिसइंटीग्रेट जब ये होगा तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो रीजनरेट हो जाएगी और इट मार्क द नेक्स्ट साइकिल। ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 इयर्स की एज तक रहती है, तो दैट इज कॉल्ड मीनोपॉज। और जो स्टार्टिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, दैट इज कॉल्ड मिनार्क। तो जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज दैट एक्सटेंड बिटवीन मिनार्क और मीनोपॉज के बीच का ये इंडिकेटर है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन। तो ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसमें 4 इवेंट्स हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज एंड ल्यूटियल फेज। तो these are the ovulatory menstrual phase, follicular phase, ovulatory phase यहाँ पे मेंशन नहीं है, ovulatory phase and then luteal phase. These are the 4 phases of the menstrual cycle. So this is all about this video. Thank you.